ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? हम्म, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ हाँ। ठीक है, कुछ डाउट हो तो बता दियो जब हो जाए बीच में। बिल्कुल और बिल्कुल। ठीक है, ना ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन ही करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा किया तो दिक्कत हो जाएगी। हम्म, ओके, तो ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद लिनक्स स्क्रिप्टिंग एंड शेल। तो in this course what we will be learning is, first thing is why we want to learn about Linux. So this is a general question that why everyone wants to learn Linux and why everyone has the requirement that Linux should be the skill set of the person who is doing the job. So first thing is that, and the second thing is what makes this most used. So why Linux is used mostly. Every company and every big company, even the servers and everything, why they are preferring Linux over Windows? Because they don't use Windows, they just use Linux for every other task. Okay, so that is the thing that we have to find out. And last thing is how to get benefits from Linux. So if we want to learn from Linux, then how we can get the maximum use of Linux, and every command that we use and everything that we use can be done with Linux only. Okay, so इंट्रोडक्शन लिनक्स का यही है कि लिनक्स हर जगह होता है, पूरी हर डेली लाइफ में हमें हर जगह लिनक्स मिलता है। ये कैसे हमें पता है कि फेसबुक और गूगल हम जो यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के अंदर लिनक्स सर्वर चलता है। अभी जो गूगल मीट जहाँ पे ये सेशन चल रहा है वो भी लिनक्स बेस्ड है, वो भी लिनक्स सर्वर है, कोई विंडोज़ को यूज़ नहीं करता, सब लिनक्स को यूज़ करते हैं। और जितने भी टेलीविज़न्स और मोबाइल फ़ोन्स हैं जितने ज़्यादा हैं, तो मतलब आईओएस भी यूज़ होता है, बट मोस्टली 90% ऑफ द वर्ल्ड इज़ कवर्ड विद एंड्रॉयड। सो एंड्रॉयड लिनक्स है, हर चीज़ लिनक्स है। तो हमें वो लिनक्स का वो वाला पार्ट दिखता नहीं है फ़ोन के अंदर, हमें बस उसका आउटर पार्ट दिखता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी इसमें हर चीज़ लिनक्स है। कोई भी चीज़ के अंदर देख लो उसके अंदर लिनक्स ही मिलता है, चाहे विंडोज़ हो, चाहे डेस्कटॉप, चाहे कंप्यूटर। इवन सुपर कंप्यूटर जितने होते हैं वो भी विंडोज़ का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि विंडोज़ बड़े लेवल पे जाके ख़राब हो जाती है, वो फट जाती है। फटने का मतलब ये है कि ज़्यादा रैम डालोगे, ज़्यादा लोड डालोगे उस पर, वो क्रैश हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। और इतने बड़े लेवल पे अगर कोई काम करता है उसको नहीं चाहिए कि विंडोज़ जो है उसकी क्रैश हो जाए। ओके, सो इसलिए हमें अभी लिनक्स के बारे में पढ़ना है क्योंकि लिनक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक लेवल पे तो चल रहा था काम, बट बड़े लेवल पे आने के बाद लिनक्स ही हर जगह यूज़ होता है, तो लिनक्स की कमांड सबको आनी चाहिए। ओके, सो ये कोर्स करने के बाद क्या क्या मिलेगा? बेसिकली आफ्टर दिस कोर्स वी विल बी एबल टू क्रिएट स्क्रिप्ट्स एंड automate tasks with Linux, and we will also know the architecture of Linux, like how the Linux work, and we will be going in depth with that. And basically, it is for interview preparation, so we will not go deep into that. We will just focus the important questions that will be important for interview and are common in the interview, and so that the person will be easily able to crack that. So yeah, in Linux, we try to avoid the use of mouse. So you can see any person in the industry, they don't use mouse. They just use the keyboard to do all the tasks and complete all the tasks using their keyboard only. So that is only possible in Linux, not in Windows. So we will learn how this is possible. But yeah, in Windows, we have to use or plug the mouse, but like when we work with servers and like large data and large servers, we don't use the mouse in there, so we just use the keyboard and do all the tasks and make it running. So that is the basic introduction about why we want, what are the questions about Linux that we have. So, and also there is serious question for everyone, why we want to learn the architecture, why we are just not learning the codes and scripts कि ये चार चीज़ें डालो, ये चार चीज़ों से आउटपुट आ जाएगा और इसका रिजल्ट ये होगा। हम ये चीज़ क्यों नहीं सीख रहे, हम स्ट्रक्चर के ऊपर क्यों जाना चाह रहे हैं, वो भी हम आगे पता करेंगे। तो
तो बेसिकली इंटरव्यू पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो ये बता सकते हैं कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट हूँ, तो एग्जांपल देने के लिए सीधा जॉब के अंदर घुसने की बात कर लो कि कब से आना है बिना इंटरव्यू दिए। तो ये स्किल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो अब आते हैं कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, जिसके लिए हमें पूरा कोर्स कर रहे हैं, पूरा टाइम यूज़ कर रहे हैं और इतने सीरियस टाइम पे इतना बड़ा कोर्स कर रहे हैं, तो इसका कुछ रीज़न होना चाहिए, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर मेन क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उनकी ब्रांच ये है। तो जैसे एमसीक्यू कहीं होते हैं, कहीं थ्योरेटिकल होते हैं, तो इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है डिफाइन करने का, देन डिस्क्राइब होता है, डिफरेंसेस होते हैं, क्विज, देन हाउ टू, देन राइट कमांड्स एंड व्हाट्स रॉन्ग। सो बेसिकली स्टार्टिंग विद डिफाइन। सो डिफाइन में वो तुम्हें एक वर्ड दे देते हैं जिसकी एक फुल फॉर्म तुम्हें बतानी होती है और उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। सपोज मैंने किसी को बोल दिया कि लिनक्स की फुल फॉर्म बताओ, बट लिनक्स की तो कोई फुल फॉर्म होती नहीं है, तो सीपीयू के फुल फॉर्म बताओ। एंड ऐसे चीज़ों के जो जो फुल फॉर्म्स होती हैं वो डिफाइन वाले पार्ट में आती हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, इसके लिए तुम्हें डेफिनेशन उसकी पता होनी चाहिए और एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर तुम बहुत वेगली कुछ भी बोलोगे तो वहाँ तुम्हारे पॉइंट्स कट सकते हैं, तो इसके लिए तुम्हें उसकी पूरी डेफिनेशन और फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ये पूरा दिमाग का याद करने का काम है। देन उसके बाद डिस्क्राइब आता है। डिस्क्राइब में तो थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें सारे। डिस्क्राइब का के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं कि अगर तुम्हें ये करने को बोला जाए तुम ये कैसे करोगे, या ज़रा एक्सप्लेन करो कि लिनक्स का आर्किटेक्चर कैसे होता है, या ये रही कॉपी, ये रहा पेन, इस पे ड्रॉ करके दिखाओ कि लिनक्स का आर्किटेक्चर कैसा होता है। क्योंकि इसमें फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है तुमसे, इसमें सिर्फ पूछा गया है कि कैसे काम करती है चीज़ें, वो एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये होता है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो कि हमें सीखना है। देन थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है जिसपे हमें परफेक्शन चाहिए होगी, वो होगा डिफरेंसेस। सो बेसिकली डिफरेंसेस में क्या फ़र्क पड़ता है? डिफरेंसेस में फ़र्क पड़ता है, वो तुम्हें बोलेंगे ये रही विंडोज़, ये रहा लिनक्स, एंड दोनों के बीच के डिफरेंसेस बताओ। सो अब तुम्हें दोनों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो तुम्हें उसके डिफरेंसेस नहीं बता पाओगे। तो ये इसका डिफरेंस का पार्ट आ जाता है। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होती। इसके लिए अगर तुम्हें बेसिक्स दोनों चीज़ों के क्लियर हो तो वो हो जाएगा। देन आता है क्विज़। सो बेसिकली क्विज से क्या मतलब है, मतलब एक कोई इंटरव्यू दे रहा है उसमें क्विज का क्या ही मतलब होगा, कोई क्विज क्विज क्यों ही खेलेगा। तो क्विज के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्विज में आता है कि सीरियल पोर्ट्स का नाम लिनक्स में क्या होता है, विंडोज़ में क्या होता है, क्या लिनक्स केस सेंसिटिव है, या उसमें किसी भी लैंग्वेज में कैपिटल स्मॉल कुछ भी करके टाइप कर दो। प्रेफर्ड साइज कितना स्वैप पार्टीशन का होता है, या कितनी रैम एक लिनक्स को चाहिए होती है, कितनी रैम एक विंडोज़ को चाहिए होती है, कमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो ये चीज़ें क्विज़ की हैं, मैंने इसको क्विज़ का नाम दिया है। क्विज़ मतलब कि इसका आंसर तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो तुम्हें नहीं समझ आएगा जब तक तुमने उस क्वेश्चन को याद नहीं किया होगा। तो इसमें हर चीज़ क्विज़ की होगी, तो तुम्हें ये रटना ही पड़ेगा कि स्वैप मेमोरी जो है वो रैम की डबल होनी चाहिए, जितनी तुम्हारी रैम है उसकी डबल होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो क्विज़ की कैटेगरी में आएंगे। देन उसके बाद आते हैं हाउ टू के। एंड हाउ टू के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ है। हाउ टू मतलब वो तुम्हें एक सिचुएशन देंगे, तुम्हें उस सिचुएशन के आगे आंसर देना। उन्हें तुम्हें बोलेंगे कि अ, एक सिस्टम के ऊपर मल्टीपल विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करेंगे, तुम मुझे समझाओ। तो तुम्हें उस टाइम पे समझाना होगा कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, या इतनी रैम डालेंगे, इतनी इसको एलोकेट करेंगे। तो ये चीज़ें हाउ टू के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाउ टू के क्वेश्चन वो ज़्यादातर पूछ लेते हैं। इसके अंदर कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। कोडिंग क्वेश्चंस में कि तुम्हारे पास 4 प्रोग्राम चल रहे हैं, 4 प्रोग्राम में तुम्हें फाइंड आउट करना है कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। तो ये चीज़ें हाउ टू के क्वेश्चंस में आ जाती हैं। देन उसके बाद वाला पार्ट आता है राइट कमांड्स फॉर। वो तुम्हें सिर्फ एक सिचुएशन देंगे कि इस पूरे एसे के अंदर 4 बार ऑरेंज लिखा है और इस ऑरेंज को काउंट करो कि कितनी बार ऑरेंज आ रहा है, और एक कमांड लिखो जिससे जितनी बार ऑरेंज लिखा है उनको कन्वर्ट करके तुम एप्पल में कन्वर्ट कर दो बिना एक एक लाइन को एडिट करे। तो ये क्वेश्चंस इंटरव्यू के अंदर आते हैं। देन लास्ट ऑप्शन होता है व्हाट्स रॉन्ग। व्हाट्स रॉन्ग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड व्हाट्स रॉन्ग होता है। इसमें तुम्हें वो एक कमांड लिख के देंगे जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और तुम्हें सोच के बताना है कि क्या इसने ये कमांड सही लिखी है या गलत। तो इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है, कि जितना ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिकली एक एक कमांड पता होगी उतनी जल्दी तुम इस चीज़ को बता पाओगे सही है या गलत। क्योंकि
कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए सही सिचुएशन, सही क्वेश्चन ही बना के दे देते हैं और बोलते हैं इसमें गलती बताओ। उस टाइम पे अगर तुमने बोला कि ये स्मॉल नहीं है, ये कैपिटल नहीं है, तो उस टाइम पे पूरा चीज़ गलत हो जाती है। तो बेसिकली ये जितने भी पार्ट हैं, ये पूरे पार्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो हमें सारे एक एक करके सारे पार्ट सीखने होंगे। डिफाइन में हमें सारी डेफिनेशंस फुल फॉर्म्स याद करनी होंगी। डिस्क्राइब के अंदर थ्योरी क्वेश्चंस याद करने होंगे, एक एक चीज़ की डेफिनेशन, कि आर्किटेक्चर काम कैसे करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। देन डिफरेंसेस में दोनों चीज़ें आनी चाहिए। जितना अच्छा तुम्हें डिस्क्राइब और डिफाइन आता होगा, उससे तुम डिफरेंसेस कर पाओगे। क्विज में तुम्हें हर चीज़ रटी होनी चाहिए, जितना ज़्यादा अच्छे से रटोगे उतना ज़्यादा क्विज अच्छी होगी। देन हाउ टू के अंदर जितना ज़्यादा तुमने उस सिस्टम पे काम कर रखा होगा, उतना आसानी से तुम उसका आंसर दे पाओगे। एंड फाइनली राइट कमांड्स और व्हाट इज़ रॉन्ग में तुम्हें कमांड्स याद होनी चाहिए। तो ये है पूरा कंक्लूडेड चीज़ कि जो हमें करनी होगी इसको ठीक करने के लिए, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। और एक ये मोटिवेशन, यू मस्ट टेल योरसेल्फ नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़, आई एम गोइंग टू मेक इट। तो थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, लिनक्स एकदम नई नई चीज़ है, विंडोज़ के जैसे ही बाहर आते हैं लिनक्स यूज़ करना है तो मुश्किल लगता है। बट अगर इसको 1 या 2 दिन भी एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक या 2 दिन भी इस पे खेल लिया किसी ने, तो उसको पूरा सब कुछ आ जाएगा। और इस वाले कोर्स के अंदर हम प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे हर चीज़। तो प्रैक्टिकल यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि किसी को अपने सिस्टम पे कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत अभी नहीं है, फ़िलहाल के लिए नहीं है, बाद में करना होगा वो करने के लिए देखेंगे। बट अभी हम करेंगे एक ऑनलाइन होस्टेड AWS अमेज़न वेब सर्विसेज पे एक यूबंटू का कंप्यूटर खरीद रखा है। उस कंप्यूटर का एक्सेस किसी को भी मिल सकता है, उसका आईडी पासवर्ड है। तो अपना जो विंडोज़ में कमांड टर्मिनल होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उस पे ही उसको लॉगिन करोगे तो तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारे विंडोज़ के सिस्टम पे सारी लाइनक्स की कमांड एग्जीक्यूट होंगी और वो रियल टाइम किसी दूसरे देश में या किसी अलग ही जगह, सियाटल या कहीं और पे, वहाँ कोई पीसी रखा होगा, उस पे सारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही होंगी। उसमें डरने की कोई बात नहीं होती। अगर कुछ गलत हो जाता है तो रीसेट करना होता है, तो वो मैं अपने एंड से रीसेट कर दूंगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। तो उसका एक्सेस मैं भेज दूंगा। तो उस एक्सेस से क्या होगा कि तुम्हें उस पर एक्सपेरिमेंट करने, जितनी भी कमांड्स हम सीखेंगे कभी भी, वो सारी कमांड्स उस पर ट्राई करनी है। और वो कमांड्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है वो सिस्टम, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, उसमें क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ता है। बट वो मैंने अपने एंड पे लगा रखा है, तो किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा लॉगिन करो और उसको यूज़ करो। ओके, सो इसके लिए हमें पूरी प्रैक्टिस करनी होगी और जितने ज़्यादा ऑनलाइन क्वेश्चंस मिल पाएँ उनको उस पर ट्राई करा जाएगा तो और ज़्यादा आसान होगा। ठीक है। तो एंड गोल हमारा है स्क्रिप्टिंग सीखना। तो स्क्रिप्टिंग सीखने के लिए हमें ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे हर चीज़ का, कैसे क्या चीज़ काम करती है। देन उसके बाद लाइनक्स का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे कि लिनक्स कैसे है, मतलब टोटल चीज़ कैसे काम कर रही है। देन उसके बाद जब आर्किटेक्चर पता चल जाएगा तो उसके कमांड्स पे काम करेंगे। देन कमांड जब पूरी कंफर्म हो जाएंगी, पूरी याद हो जाएंगी, तो उन कमांड्स की स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कमांड्स होती हैं सिंगल लाइन की, एक सिंगल लाइन की कमांड डाली और एग्जीक्यूट किया और वो चल गई। स्क्रिप्ट होता है मल्टीपल लाइंस ऑफ कमांड्स को एक साथ एक चीज़ में डाल देना, एक फाइल में डाल देना, और जब उस फाइल को चलाओगे वो लाइन बाय लाइन सारी कमांड्स को एक साथ चला देगी। तो उसके लिए लिनक्स कमांड आनी चाहिए। लिनक्स कमांड के लिए लिनक्स का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, और आर्किटेक्चर पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि लिनक्स और विंडोज़ में डिफरेंस क्या है, लिनक्स है क्या चीज़। तो ये चीज़ इंट्रोडक्शन में सीखेंगे। बाकी कंटेंट्स 3 पार्ट में पूरा कोर्स डिवाइडेड होगा। तो इसके 3 पार्ट्स होंगे। पहले आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स, देन सेकेंड पार्ट इज़ लिनक्स कमांड, एंड थर्ड पार्ट इज़ शेल स्क्रिप्टिंग। सो आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आता है तो जल्दी जल्दी कवर होता रहेगा, अगर नहीं आता तो उसको टाइम देके कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यूज़ में लिनक्स ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि यही बहुत बेसिक चीज़ है। अगर किसी को लिनक्स का आर्किटेक्चर आता होगा तो वो कमांड और शेल स्क्रिप्टिंग 2 मिनट में सीख जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और ये कंपनी वाले भी जानते हैं कि अगर किसी को आर्किटेक्चर आता है लिनक्स का, तो उसको हम पूरे यहाँ पे काम करते करते सब लिनक्स की स्क्रिप्टिंग और शेल स्क्रिप्टिंग सिखा देंगे।
बट अगर किसी को लिनक्स का आर्किटेक्चर याद नहीं होगा तो वो उसको वहाँ नहीं सिखा सकता। तो इसके लिए लिनक्स का आर्किटेक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। लिनक्स क्या है? अभी तक के लिए किसी को कोई डाउट? अच्छा ठीक है। सो बेसिकली लिनक्स क्या है? तो लिनक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ अ सिस्टम इन ऑर्डर टू अलाउ यूजर एंड एप्लीकेशन टू मेक यूज ऑफ इट। तो बेसिकली एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। एक हार्डवेयर जो हम डिज़ाइन कर देते हैं, उसको हम रैम डाल देते हैं, उसमें सीपीयू डाल देते हैं, उसमें सब चीज़ें डाल देते हैं। उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो है लिनक्स। तो लिनक्स करता है कि अगर हमें कोई वीडियो एडिटिंग करनी है तो वीडियो एडिटिंग के लिए जीपीयू का यूज़ होगा। अब जीपीयू सिस्टम में तो है, बट उसे यूज़ कौन करेगा? उसको यूज़ लिनक्स करेगा। तो वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि हार्डवेयर को यूज़ कैसे करना है, वो लिनक्स का काम है। लिनक्स एकदम फ्री है, बिल्कुल फ्री। अगर किसी को अभी भी डाउनलोड करना है तो सीधा गूगल सर्च करो, लिनक्स डालो, यूबुंटू, और बहुत सारे वेरिएंट्स उसके अवेलेबल हैं। जो डाउनलोड करना है सीधा क्लिक करो और डाउनलोड करो। विंडोज़ के लिए कीज़ डालनी होती है, विंडोज़ के लिए उसका पूरा सब कुछ खरीदना होता है। 8-9 हज़ार की विंडोज़ होती है और उसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। वेरिएंट्स लिनक्स के भी हैं बट सारे फ्री हैं। तो किसी को कोई भी लिनक्स डाउनलोड करना हो, नया चाहिए, पुराना चाहिए, बिल्कुल बहुत पुराना चाहिए या बिल्कुल लेटेस्ट ही चाहिए, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं, कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ टोटल फ्री है। बस एक सिस्टम होना चाहिए जिस पे वो चल जाए। ठीक है, तो लिनक्स एक नाम है जो इसके क्रिएटर लिनक्स टॉरवल्ड्स, इसने इसका नाम दिया था। तो लिनक्स एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ओके। सो फीचर्स ऑफ लिनक्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, मल्टी यूज़र होता है, बहुत सिक्योर होता है, फास्ट होता है। सिक्योर कितना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये विंडोज़ से बहुत ज़्यादा लेवल पे सिक्योर है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स जहाँ पे भी बड़े सर्वर्स और बड़ी चीज़ें होती है वहाँ पे हर जगह लिनक्स यूज़ होता है। ये एक बेसिक सा फ्लो चार्ट है। अगर किसी को लिनक्स के बारे में नहीं पता तो उसको ऐसे बताया जाता है। क्या कोई इडियट है? अगर है तो वो मैक की तरफ जाएगा और वो मैक लेके बैठ जाएगा। बट अगर कोई इडियट नहीं है तो फिर उससे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आपके पास लाइव है? अगर है तो वो विंडोज़ के पास जाएगा, क्योंकि विंडोज़ को यूज़ करना बहुत कम कॉम्प्लिकेटेड है। एक बेसिक सा इंसान भी विंडोज़ को चलाएगा, उसे चल जाएगी। बट अगर उसके पास कुछ और काम नहीं है लाइफ में तो वो लिनक्स की तरफ जाएगा और लिनक्स को बहुत अच्छे से सीख लेगा। तो ये एक बेसिक सा फ्लो चार्ट है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो मैक लेके इस वाले पार्ट में चले जाते हैं। कुछ लोग जिनको सेटल करना पड़ता है वो विंडोज़ की तरफ आ जाते हैं, और फाइनली जो प्रोग्रामिंग और इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, सब लिनक्स के अंदर घुसे हुए होते हैं, सबको लिनक्स आ रहा होता है। ओके। सो बहुत लोगों ने ये चीज़ फेस करी होगी कि स्क्रीन ऑफ डेथ, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। विंडोज़ का पीसी चलते चलते एकदम से ब्लू स्क्रीन आती है, कुछ नहीं हो पाता, चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है। चाहे यूएसबी हटाओ, चाहे यूएसबी लगाओ, या कुछ कुछ भी एरर, कुछ भी फॉल्ट पे वो ब्लू स्क्रीन आ जाती है और बंद हो जाती है। विंडोज़ में भी अभी विंडोज़ 10 अभी तक लेटेस्ट चल रहा है, इसके अंदर भी इतने इश्यूज हैं ब्लू स्क्रीन के। बट लिनक्स जब से बना है तब से लेके अब तक एक बार भी इसमें ब्लू स्क्रीन कोई भी एरर नहीं आया। और बेसिकली मैक जो है वो भी लिनक्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ों में सब कुछ डिवाइडेड है, विंडोज़, मैक एंड लिनक्स। मैक जो है वो लिनक्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो अगर किसी को लिनक्स चलाना आता है उसको लिनक्स और मैक बहुत आसानी से चलाना आएगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि लिनक्स बहुत स्टेबल है, कभी ख़राब नहीं होता, कभी अनइंस्टॉल नहीं होता, या कभी उसमें उड़ने के चांसेस नहीं होते। सेम मैक के साथ है। बट मैक बहुत प्रीमियम हो जाता है, बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट देके उसको ख़रीदा जाता है, इसलिए उसको लोग ज़्यादा अच्छे से प्रेफर करते हैं, इसलिए उस पर एप्पल बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। बट लिनक्स फ्री है इसलिए लोग उस पर जाना नहीं प्रेफर करते। ओके। सो अब इंट्रोडक्शन और कंपैरिजन। सो ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर किसी इंटरव्यू में। अगर नोट करना है तो इसे नोट कर सकते हैं बेसिक स्मॉल पॉइंट्स में। इंट्रोडक्शन है लिनक्स और विंडोज़ में। तो लिनक्स एक कर्नल है
कर्नल होता है कि एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है एक हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का, और लिनक्स का कर्नल जो रिलीज़ हुआ था वो 1991 में रिलीज़ हुआ था। तो ये इतना ज़्यादा भी पुराना नहीं है, बट 1991 में लिनक्स रिलीज़ हुआ था, लिनक्स का फर्स्ट कर्नल रिलीज़ हुआ था, और उसको रिलीज़ करने वाला था लिनक्स टॉरवल्ड्स। और बस, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको एनहेंस कर दिया इस पर्सन ने, उसको यूज़ करके उसको और एनहेंस कर दिया, उसके ऊपर और नई सॉफ्टवेयर डाल दिया, उस पर नई कमांड्स डाल दी, और वो डालने के बाद उसने उसका यूनिक्स का लिनक्स बना दिया। और बस, ये फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना होता। अब विंडोज़ के ऊपर आते हैं। विंडोज़ है एक ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जब से विंडोज़ बनी है तब से ग्राफिकल नहीं थी। शुरू में इसके पास एक ब्लैक स्क्रीन आती थी जिस पे लोग काम करते थे। धीरे धीरे एडवांसमेंट होती रही, तो एडवांसमेंट होने के बाद विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, इन सब में माउस का यूज़ होने लगा, और हम माउस से नेविगेट कर सकते थे कि माई कंप्यूटर पे जाना है, स्टार्ट पे जाना है, और ये सारी चीज़ें। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट है, और 1985 में ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका शेल एम एस डॉस है, तो ये एम एस डॉस के ऊपर बिल्ड है। अब लोगो देखना है तो लिनक्स का तो ये पेंगुइन है, जहाँ पे भी देखोगे लिनक्स का हमेशा लोगो यही सेम रहेगा, और विंडोज़ का लोगो ये विंडोज़ टाइप का कुछ है। ओके, सो अब हम यहाँ जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे ये सारी इसकी डिफरेंसेस के अंदर होंगी, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट स्टिल सारे जितने भी डिफरेंसेस हैं सब कवर करेंगे। अगर ज़्यादा तेज़ स्पीड हो रही हो तो बता सकते हैं कि थोड़ा स्लो करा जा सकता है इसको। बाकी अब यहाँ से सारे डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, अगर किसी को नोट करना है तो एक एक करके सारे डिफरेंसेस पॉइंट वाइज नोट करने से बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये चीज़ें इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछी जाती हैं बिना किसी चेंज करे। ओके, सो लोगो में डिफरेंस ये है लिनक्स और विंडोज़। देन लाइसेंस, सो लिनक्स जो है GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस पे है, और विंडोज़ है प्रोप्राइटी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो विंडोज़ के लिए हमें हर चीज़ खरीदनी पड़ती है, और लिनक्स जनरल पब्लिक लाइसेंस है, किसी को भी यूज़ करना है वो उसको यूज़ कर सकता है। लिनक्स डेवलप्ड बाय लिनक्स टॉरवल्ड्स, बहुत बार नाम सुन चुके हैं इसका। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने इसको क्रिएट किया, उसका नाम बताओ, डेवलपर कौन था, किसने स्टार्ट किया। विंडोज़ को स्टार्ट करने वाले का नाम बिल गेट्स है, जिसने स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट के नेम से। माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जो कि विंडोज़ है। यूज़र मोड, सो जैसा कि शुरू में बताया था कि विंडोज़ था, लिनक्स था, उसके अंदर हम ब्लैक स्क्रीन पे भी काम कर सकते हैं और उसका GUI मोड पे भी काम कर सकते हैं। तो CLI मीन्स क्लाइंट कमांड लाइन इंटरफेस, GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो दोनों में ये डिफरेंस है। CLI के अंदर तुम्हें कोई आइकन नहीं दिखेगा, कोई कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हें जो चीज़ दिखेगी वो एक सिंपल विंडो की तरह होगी। विंडो भी विंडो भी जैसे हम यहाँ से CMD करते हैं, विंडोज़ के अंदर हमें ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हम माउस क्लिक भी कर सकते हैं एंड ये टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं। बट लिनक्स के अंदर ये दोनों चीज़ें इंडिविजुअल अवेलेबल हैं। तो अगर हमें GUI यूज़ करना है, उसमें GUI कंप्लीट आएगा, उसमें माउस यूज़ होगा। CLI करेंगे तो सब कुछ हट जाएगा, सब कुछ बिल्कुल बंद हो जाएगा, और सिर्फ कमांड टाइप कर पाएंगे। CLI और क्या था? क्या? CLI? CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, सो विंडोज़ जो है वो सिर्फ एक ही मोड पे काम करती है, GUI मोड पे। अब एक इसमें बेसिक डिफरेंस मैं बता देता हूँ। जब भी हम किसी लिनक्स का सिस्टम बूट करते हैं, जब भी कभी किसी को बूट करते हुए देखा होगा रेस्पबेरी पाई का OS, या रेस्पबेरी पाई पे काम किया होगा लिनक्स में, या कभी अ, किसी सिस्टम पे लिनक्स बूट होते हुए देखा होगा, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में बहुत कुछ टेक्स्ट लिखा आता है और वो ऊपर की तरफ भागता रहता है और फटाफट होता है और सीधा विंडो स्टार्ट हो जाती है जब हम कभी लिनक्स को स्टार्ट करते हैं। बट विंडोज़ को स्टार्ट करने में उसका विंडोज़ का लोगो आता है, या डॉट्स मूव कर रहे होते हैं, या एक बार मूव कर रहा होता है, तब जाके पूरी विंडोज़ लोड होती है, सीधा स्क्रीन पे आते हैं। तो जो वो CLI वाला पार्ट है वो उसको विंडो को लिनक्स का GUI लोड करने के काम आता है, और विंडोज़ में सिर्फ एक ही मोड होता है, GUI मोड।
इसमें कोई डाउट? नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लिनक्स के अंदर हम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, CLI और GUI मोड, और विंडोज सिर्फ GUI मोड पे काम करती है। इसका मैं बेनिफिट भी बता देता हूँ। इसका बेनिफिट बहुत सिंपल होता है कि कहीं अगर किसी ने सर्वर्स देखे हों, अगर कहीं सर्वर देखा हो, तो सर्वर होता है उसमें मॉनिटर लोग अटैच नहीं करते हैं, किसी भी सर्वर में मॉनिटर अटैच नहीं होता है। तो अब सर्वर पे मॉनिटर अटैच नहीं होता तो काम कैसे होता है? क्योंकि सर्वर को ये लोग CLI मोड पे चलाते हैं, GUI मोड पे नहीं चलाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? GUI मोड पे चलाएंगे तो उनको मॉनिटर लगाना ज़रूरी होगा, वरना वो सिस्टम बूट नहीं होगा। बट अगर CLI मोड पे चलाते हैं तो वो स्क्रीन बंद होने के बाद भी कमांड्स टाइप करेंगे और उनकी पूरी कमांड्स एक साथ चलेंगी। तो इसलिए सारे सर्वर्स जितने भी होते हैं उन सब में लिनक्स यूज़ होता है, विंडोज़ हार्डली किसी एक सर्वर में यूज़ होती है जहाँ पे मॉनिटर लगा होता है। ओके, प्रोग्राम्ड ऑन लिनक्स, सी और पाइथन पे बेस्ड है। विंडोज़ C++ और असेंबली लैंग्वेज पे बेस्ड है। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में। अगर किसी को विंडोज़ पे पाइथन इंस्टॉल करनी है, उसको विंडोज़ में पाइथन अलग से इंस्टॉल करनी होगी, बट लिनक्स में उसको पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलती है, क्योंकि लिनक्स बेस्ड ही पाइथन पे है। अगर हम पाइथन इसकी उड़ा देते हैं तो सिस्टम बंद हो जाता है, सिस्टम से सब कुछ उड़ जाता है, क्योंकि पाइथन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चलता नहीं है। ओके, अब इसका कोड। तो लिनक्स का कोड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी को अगर कहीं पे भी यूज़ करना है तो इसका कोड डाउनलोड कर सकता है और उसमें चेंजेस करके अपने यूज़ के लिए कर सकता है। कोई इतना भी कर सकता है कि उसका कोड डाउनलोड किया, उसमें अपना नाम डाला वॉलपेपर पे, या अपनी इमेजेस डाल दी अपने वॉलपेपर की, और उसका एक पैकेज बना के किसी को बेच दिया कि ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये मैं बेच रहा हूँ। तो लिनक्स को इससे भी कोई इशू नहीं है, कोई भी कर सकता है यूज़, और कोई भी इसको मॉडिफाई और अपडेट कर सकता है। बाकी अब विंडोज़ पे आते हैं। विंडोज़ का सब कुछ एकदम क्लोज्ड होता है, एकदम सिक्योर होता है। विंडोज़ का एक भी कोड हम नहीं देख सकते हैं कि विंडोज़ किस चीज़ पे चल रही है, क्या उसका कोड क्या है। ओके, और बेस्ट चीज़ इसके अंदर ये है, लिनक्स के अंदर एक बार में 7 यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। एक साथ का लिटरली मतलब 7 लोग एक साथ हैं। तो 7 लोग का मतलब क्या हो गया? एक सिस्टम पे तुमने एक कंप्यूटर ऑन किया और उस पे तुमने 7 मॉनिटर कनेक्ट कर दिए, और 7 लोग अपने अपने सिस्टम पे अपनी तरह से काम कर रहे हैं। किसी का किसी के साथ परेशानी है, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सबका सिस्टम इंडिविजुअली चल रहा है। बट विंडोज़ में यूज़र्स मल्टीपल होते हैं, बट एक बार में एक ही काम कर पाता है। अगर किसी ने अपने लैपटॉप पे एक बार विंडोज़ चलाई और अपने आप को साइन इन कर लिया, तो एक ही बार में एक ही यूज़र काम करेगा, मल्टीपल यूज़र इस पे काम नहीं कर सकते। ओके, इसमें कोई डाउट? ओके, तो बेसिकली इसलिए लिनक्स को भी वेबसाइट डिप्लॉयमेंट करने के लिए या सर्वर डिप्लॉय करने के लिए, जितनी भी वेबसाइट होती हैं सारी लिनक्स पे डिप्लॉयड होती हैं, इसीलिए क्योंकि 7 लोग एक साथ उस पर अपनी अपडेट कर सकते हैं। विदाउट माउस क्यों यूज करते हैं इसको विदाउट माउस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट था, 2 मोड होते हैं इसके, CLI और GUI। तो अगर हमें कुछ स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा है तो हम माउस चला के भी क्या कर लेंगे, उसमें कुछ काम नहीं होने वाला। तो इसलिए इसमें CLI मोड है। तुम उसमें सर्वर पे बस कीबोर्ड लगाओ, अपनी कमांड एक एक करके टाइप करते रहो और सर्वर काम करने लग जाएगा। विदाउट माउस यूज़ नहीं करते इसमें। अगर तुम्हें माउस यूज़ करना है तो GUI मोड यूज़ कर लो, अगर माउस यूज़ नहीं करना तो ऑटोमेटिकली CLI मोड पे शिफ्ट हो जाता है। तो एक बेसिक सा फैक्ट इसमें यह है कि अगर तुमने अपने CPU के अंदर लिनक्स डाल रखा है, सपोज अपने घर पे कोई कंप्यूटर है उस पर तुमने लिनक्स डाल रखा है, और तुमने उस पर मॉनिटर लगाना भूल गए या नहीं लगाया, तो ऑटोमेटिकली वो जो पूरा CPU होगा वो लिनक्स मोड पे बूट हो जाएगा, और तुम उस पर कीबोर्ड से काम कर सकते हो, पर उसके बाद तुम उस पर मॉनिटर लगा भी दोगे तो भी वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो बूट ही उस मोड में हो गया है। अगर तुम्हें उसको फिर से करना हो तो तुम्हें कमांड टाइप करनी होगी, रीबूट। तुम माउस से कहीं जाके उसको रीबूट नहीं कर सकते, तुम्हें कमांड टाइप करनी होगी रीबूट, और वो रीबूट होने के बाद उसको GUI मोड पे चलाएगा, अगर मॉनिटर सही चल रहा है तो। अगर मॉनिटर नहीं चल रहा तो नहीं होगा। कमांड से याद करनी पड़ेगी सारी।
हाँ, उसके लिए सारी कमांड याद करनी पड़ेगी। बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो लिनक्स पे सिर्फ 70 to 100 वायरसेस अब तक हैं, और विंडोज़ के लिए 70,000 वायरसेस हैं। तो मतलब अगर किसी की पेन ड्राइव में थोड़े भी कुछ वायरस हों तो पॉसिबल चांसेस है कि विंडोज़ का पीसी पक्का ख़राब हो जाए, बट लिनक्स के पीसी ख़राब ही नहीं होते क्योंकि उसके लिए वायरसेस हो ही नहीं पाते हैं, उसके लिए कोई वायरसेस बना नहीं पाता। तो इसका रीज़न मैं चाहता हूँ कि कोई और आंसर करे कि क्यों, ऐसा क्यों कि इसके 70 to 100 वायरसेस ही क्यों हैं और उसके 70,000 क्यों हैं। हेलो, आंसर? पता नहीं भाई। ऐसे ही कुछ अजम्पशन। इसमें CLI यूज होता है इसलिए कमांड्स वगैरह यूज होती है इसमें। नहीं। ओके, आंसर इस चीज़ में छुपा हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिनक्स के अंदर वायरसेस कम क्यों हैं, विंडोज़ में वायरसेस बहुत ज़्यादा क्यों हैं। विंडोज़ का जो कोड है वो सिर्फ विंडोज़ के एम्प्लॉयज़ यूज़ कर पाते हैं, उनको ही दिखता है। तो वो एक साथ बैठ के 70,000 वायरसेस को हटाने के कोड नहीं कर सकते हैं। लिनक्स हम्म, ओपन सोर्स है, तो इनका जो कोड है वो पब्लिकली ऑनलाइन इन्होंने डाल रखा है। जिसको भी नए वायरसेस का पता चले वो इनका कोड चलाओ, अपने उस वायरस को ठीक करने का कोड डालो और अपलोड कर दो इनकी सिस्टम पे। इनका जो पूरा कोड होगा वो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम कोई और पर्सन उस कोड को वहाँ से डाउनलोड करेगा तो उसको वो वायरस की सॉल्यूशन मिल चुका होगा और उसके सिस्टम में वो वायरस नहीं आएगा। तो जो भी नया वायरस आता है उसके लिए लाइनक्स की जो कम्युनिटी है, लाइनक्स के जो डेवलपर्स हैं वो फटाफट उसको ठीक कर देते हैं, बट विंडोज़ में हर चीज़ सिर्फ उसके माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ ही कर पाएंगे, इसलिए इसको कोई ठीक नहीं कर पाता, इसलिए इसमें ज़्यादा वायरसेस हैं। तो इसलिए कोई भी देखेगा कि लिनक्स का सिस्टम जो है वो बहुत स्टेबल होता है, वो ख़राब नहीं होता ज़्यादातर, बट विंडोज़ का बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ये जितने भी सर्वर्स हैं उनपे लिनक्स यूज़ होता है क्योंकि उसके लिए कोई वायरस है ही नहीं ज़्यादा। ओके, अब ये इसके फाइल सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। विंडोज़ के पास सिर्फ 3 फाइल सिस्टम है, FAT16, FAT32 और NTFS। ये फैट क्या होते हैं बेसिकली? फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम होता है हमने अपनी कोई पेन ड्राइव लगाई, वो किस फॉर्मेट पे फॉर्मेटेड है। हम जब अपनी पेन ड्राइव को विंडोज़ में फॉर्मेट करते हैं तो 3 ऑप्शंस आते हैं, FAT16, FAT32 एंड NTFS। तो अगर हमारी किसी और फॉर्मेट में फाइल या पेन ड्राइव फॉर्मेटेड है तो हम उसको लगाएंगे, वो रीड नहीं करेगा। पर विंडोज़ के अंदर से 3 ही फॉर्मेट अवेलेबल हैं, और लिनक्स 32, मतलब इतनी सारी फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है कि कोई भी पेन ड्राइव किसी भी फॉर्मेट की इस पे लगाओगे, इस पे हमेशा चल जाएगी बिना किसी एरर के, और ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक बाकी है। एडमिन मोड दोनों में होता है। एडमिन मोड को ये कह सकते हैं कि पावर यूज़र मोड। तो अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो तुम्हारा जो एडमिन होगा वो तुम्हारे सिस्टम पे कुछ भी काम करेगा। अगर तुम अपना पासवर्ड भूल गए तो एडमिन उसको ठीक कर सकता है, रीसेट कर सकता है। एडमिन ये मोड होता है। लिनक्स में रूट कहा जाता है उस एडमिन मोड को, और विंडोज़ में उसको एडमिन कहा जाता है। रूट एक ट्री की तरह ही डिराइव किया गया है, तो रूट इसमें सबसे बेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूज़र लेवल होता है। तो अगर तुमने 7 अकाउंट बनाए अपने सिस्टम पे और 7 के 7 अकाउंट में कुछ पंगा हो गया या ख़राब हो गए, तो रूट यूज़र से वो सब चीज़ों को ठीक कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम किसी का अकाउंट डिलीट भी कर सकते हो अगर तुम रूट यूज़र हो तो। सेम रूट विंडोज़ यूजर के अंदर है। हाँ। रूट यूजर मतलब? जैसे विंडोज़ में एडमिन होता है, तो एडमिन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर उसका नाम होता है। तो अगर तुमने 4 या 5 लोगों के अकाउंट बनाए, जैसे सपोज़ तुमने अपनी फैमिली में 4 लोगों के अकाउंट बनाए विंडोज़ में। विंडोज़ होते हैं जैसे अकाउंट्स होते हैं, जैसे एक हर नाम, हर पर्सन का एक नाम के साथ हिसाब से अकाउंट। तो विंडोज़ में जो एडमिन होता है वो उसका अकाउंट डिलीट कर सकता है, उसका पासवर्ड चेंज कर सकता है, उसकी फ़ोटो चेंज कर सकता है। सेम काम लिनक्स में रूट कर सकता है। तो बेसिकली रूट एक सिक्योर चीज़ है, बहुत सिक्योर चीज़ है ये।
जब भी तुम्हें कोई ऐप इंस्टॉल करनी होती है या कुछ भी नई चीज़ इंस्टॉल या डिलीट करनी होती है, तुम्हें रूट से परमिशन मांगनी होती है कि क्या मैं इसे कर दूं, और अगर रूट अलाउ करता है तो ही तुम कर पाओगे। तो ये अभी हम आगे देखेंगे। जैसे कुछ नया इंस्टॉल करना है तुम्हें, जैसे सपोज क्रोम इंस्टॉल करना है लिनक्स में, तुम इंस्टॉल करोगे इंस्टॉल क्रोम। अभी हम इसको बेसिक लेके चलते हैं। इंस्टॉल क्रोम लिखोगे और इंस्टॉल करेगा, वो बोलेगा कि परमिशन डिनाइड, मैं नहीं कर सकता। तुम उस पर लिखोगे सूडो इंस्टॉल क्रोम। तुम सूडो लिखोगे, फिर इंस्टॉल क्रोम लिखोगे, और फिर उसके बाद तुमसे वो पासवर्ड पूछेगा कि रूट अकाउंट का पासवर्ड बताओ। फिर तुम पासवर्ड डालोगे और वो इंस्टॉल करेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एक में हमने सूडो लिखा, एक में सूडो नहीं लिखा। सूडो की फुल फॉर्म होती है, ये नोट करने वाला क्वेश्चन है, सुपर यूजर डू। ठीक है। सुपर यूजर डू, अगर हम सुपर यूजर डू और या SUDO ये लिख के इंस्टॉल दिस करते हैं, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए जो रूट होता है वो उसको इंस्टॉलेशन करता है, और वो उसमें कुछ भी इश्यूज नहीं आने देता, वो उसको अपने लेवल पे इंस्टॉल करता है। तो जब भी कुछ हार्ड डिस्क में चेंज या कोई नया प्रोग्राम डिलीट या इंस्टॉल करना हो, उसके लिए हमें रूट के लिए सूडो चाहिए होता है। विंडोज़ में हम हर बार जब कुछ इंस्टॉलेशन करते हैं तो येस या नो पूछता है कि दिस प्रोग्राम वांट्स टू मॉडिफाई सम फाइल्स इन योर सिस्टम, येस और नो। तो हम उसे नो कर देते हैं तो वो कैंसिल हो जाती है इंस्टॉलेशन, येस करते हैं तो इंस्टॉल हो जाता है। तो ये है। और विंडोज़ में भी अगर हम उसको येस करते हैं तो पासवर्ड डालना पड़ता है। तो सेम इसमें लिनक्स में है। बाकी लिनक्स बहुत जगह इंस्टॉल हो सकता है, कहीं भी इंस्टॉल हो सकता है। टैबलेट कंप्यूटर, वीडियो गेम, सुपर कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, लैपटॉप। बट विंडोज़ जो है वो सिर्फ डेस्कटॉप, लैपटॉप से सर्वर में इंस्टॉल होती है। इसलिए हमने देखा होगा कि एंड्रॉयड एक बहुत पॉपुलर सिस्टम है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये सब चीज़ों पे चल जाता है। और एक फैक्ट की बात, अगर कोई अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में उस लिनक्स को यूज़ कर रहा है और वो अपने फ़ोन में भी उस लिनक्स को यूज़ कर रहा है, तो उनका जो कर्नल पार्ट होगा, जो कर्नल उसका बेस मतलब बेसिक पार्ट होगा, दोनों का एग्जैक्ट सेम होगा। अच्छा। क्या ये समझ आया? नहीं आया। क्या नहीं आया। नहीं आया? ओके। तो कर्नल क्या होता है? कर्नल एक सबसे बेसिक, जैसे किसी को घर बनाना होता है तो घर बनाने में सबसे बेसिक पार्ट क्या होता है? ईंट का होता है या नींव का होता है। अब जब नींव डालते हैं उसके ऊपर तो पूरा घर बनता है। तो हाँ। लिनक्स जो था वो कर्नल के ऊपर बना था। तो कर्नल जो है वो हमेशा सेम रहता है। अब अगर किसी को डेस्कटॉप पे यूज़ करना है तो कर्नल सेम रहेगा, उसके ऊपर के जो जितने पार्ट्स होंगे वो लैपटॉप पे काम करने के लिए होंगे। किसी को अगर फ़ोन पे काम करना है तो कर्नल सेम रहेगा, उसके ऊपर की चीज़ें चेंज होगी। उसके ऊपर टच स्क्रीन के सॉफ्टवेयर ड्राइवर डल जाएंगे, उसके ऊपर डिस्प्ले अलग डल जाएगी, उसका कीबोर्ड वाला ड्राइवर हट जाएगा। बट अगर किसी को कंप्यूटर पे काम करना है तो कंप्यूटर के अंदर उसका कर्नल फिर से सेम रहेगा, बट इसके अंदर ग्राफिक्स के ड्राइवर डल जाएंगे, GPU डल जाएगा, CPU के पार्ट्स डल जाएंगे। तो ये कर्नल सब में सेम रहता है। ठीक है। बाकी विंडोज़ सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप सर्वर इन चीज़ों में इंस्टॉल होती है। और पैकेज, तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं लिनक्स के वो .rpm फॉर्मेट में होते हैं। कोई भी हमें इंस्टॉल करना हो तो .rpm फॉर्मेट से हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन और डिलीशन और रिमूवल, ये चीज़ भी हम इस कोर्स में आगे सीखेंगे। बाकी विंडोज़ में सिर्फ .exe और .msi फॉर्मेट होती है। MSI की फुल फॉर्म वैसे होती है माइक्रोसॉफ्ट सर्विस इंस्टॉलेशन, सो इंस्टॉलर, सो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। तो MSI की फुल फॉर्म ये होती है। एक्जी का मतलब एग्जीक्यूटेबल होती है। और या बस इतना ही है। तो लिनक्स और विंडोज़ में ऐसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जब हम आरपीएम की। विंडोज़, RPM की देखनी पड़ेगी। RPM की पैकेज मैनेजर तो होता है, बट ये जो फाइल फॉर्मेट थे याद करने पड़ेंगे क्या ये भी? ये, हाँ, ये फाइल फॉर्मेट याद करने होते हैं। मतलब पता सारी होना फाइल। चाहिए कि
हाँ, आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रेड हैट पैकेज मैनेजर। तो रेड याद हैट। नहीं करनी होती, याद नहीं करनी होती, याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अगर तुम्हारे सामने तीन, तुम्हें सपोज कोई लिनक्स के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके लिए एक्जी नहीं चलेगी, इसके लिए एमएसआई नहीं चलेगी, इसके लिए मुझे चाहिए डॉट आर पी एम। गूगल क्रोम डॉट आर पी एम डाउनलोड करोगे वो लिनक्स पे चलेगी, गूगल क्रोम डॉट ई एक्स ई डाउनलोड करोगे वो विंडोज़ पे चलेगी। तो ये इसलिए याद करने की ज़रूरत है। एक बार फाइल फॉर्मेट वाला स्लाइड दिखाइए। ये वाला, हम्म, ये फाइल सिस्टम है। हम्म, ठीक है चलो। ठीक है। बाकी बूट लोडर, बूट लोडर बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। बूट लोडर क्या होती है कि तुमने अपनी विंडोज़ किस ड्राइव में डाली है। अगर तुमने सी ड्राइव में डाली है तो सी में विंडोज़ बूट होगी, अगर तुमने डी ड्राइव में डाली है डी ड्राइव में बूट होगी। तो ये डिसाइड कौन करता है कि कहाँ विंडोज़ डली हुई है, ये होता है बूट लोडर। बूट लोडर क्या करता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद वो कहाँ से शुरू कर रहा है वो चीज़ को देखना, कहाँ से विंडोज़ ढूंढ रहा है, कहाँ उसको बूट कर रहा है, ये चीज़ काम उस बूट लोडर का होता है। तो लिनक्स में जो बूट लोडर होता है उसका नाम होता है ग्रब, और विंडोज़ में होता है एम बी आर। सो ये दोनों इसके बूट लोडर होते हैं। और इसके अंदर एम बी आर की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट बूट रिकॉर्ड, बूट रिपोर्ट। या मास्टर बूट रिकॉर्ड। हाँ, एम बी आर की फुल फॉर्म होती है मास्टर बूट रिकॉर्ड, और ग्रब की फुल फॉर्म होती है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। बाकी होते दोनों ही बूट लोडर हैं। तो हम कोई विंडोज़ इंस्टॉल, मतलब बेसिकली ये कब काम आता है, जब हम लिनक्स को पीछे जाते हैं, विंडोज़ को अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो विंडोज़ की हम सीडी उठाते हैं, सीडी को सिस्टम में डालते हैं और उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो जो आता है कि यहाँ इंस्टॉल करो, नेक्स्ट करो, ये करो, वो करो, वो जहाँ इंस्टॉल हो रही है उसकी फ़ाइल क्या है, या कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल कर रहे हो, ये चीज़ उसका बूट रिकॉर्ड होता है। तो विंडोज़ में वो एम के नाम से जाना जाता है, जिसमें सेव होता है कौन सी में विंडोज़ है, कहाँ पे नहीं है। और लिनक्स में उसको नाम ग्रब कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, ये भी एक बार हम आगे पढ़ेंगे। तो लिनक्स के टाइप्स क्या होते हैं, वे बहुत सिंपल है। एक होता है यूबंटू, एस यू एस ई, एंड फिर रेड हैट आता है, फिर डेबियन, फिर मिक्स, देन आर्क लिनक्स। और इसमें अगर और भी देखे होंगे तो और भी होते हैं, जैसे रेस्बेरी पाई का रेस्बेरी पाई ओएस होता है, रेस्पियन। जब ओके। इंस्टॉलेशन करी होगी तो मतलब बेसिकली सारी चीज़ें लिनक्स हैं, लिनक्स के फ्लेवर्स हैं। फ्लेवर मतलब यूबुंटू के अंदर वॉलपेपर कुछ और होंगे, थीम्स कुछ और होंगी। रेड हैट के अंदर एप्स कुछ और होंगी, रेड हैट के अंदर मे भी सब कुछ रेड थीम्स में हो, रेड थीम में हो, इसके वॉलपेपर अलग हों, और इसमें थीम्स बिल्कुल अलग हों, इसकी कमांड्स थोड़ी सी अलग हों, या इसमें कुछ इसके नए फीचर्स डले हों। डेबियन में सेम चीज़ होगी बट थोड़े थोड़े वेरिएशंस होंगे, क्योंकि चीज़ सारी सबकी सेम चल रही है, कर्नल सबका सेम है, सबका मतलब जितनी भी चीज़ें हम लिनक्स में यूज़ कर रहे हैं उन सबका कर्नल सेम रहेगा, पर इसके ठीक। ऊपर की लेयर चेंज होती रहेंगी, थीम चेंज होगी, ड्राइवर चेंज होंगे, और उसकी इंस्टॉलेशन फाइल्स चेंज होंगी, पैकेजेस चेंज होंगी। और विंडोज़ में ये चीज़ें चेंज होती हैं, विंडोज़ सर्वर हो गया, विस्टा 7 एक्सपी, विंडोज़ 10। सो ये विंडोज़ के फ्लेवर्स हैं। तो अब ये आ गया लिनक्स का आर्किटेक्चर। तो ये ड्रॉ अभी करना हम, पड़ेगा। हाँ, हाँ, ये ये ड्रॉ करना याद करना पड़ेगा। फिर ये बना करने लेता हूँ। से पहले एक बार हम इसको फिर से एक बार फाइनली देख लेते हैं, इसमें कुछ इश्यूज ना रहे। लिनक्स कर्नल बेस्ड होता है, कर्नल के ऊपर सब कुछ होता है। अब रिवीजन कर लेते हैं एक बार जितना पढ़ा, उसके बाद आ, आगे का बाद में नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ये एक साथ ज़्यादा हो जाएगा ये, तो समझ नहीं आएगा फिर।
तो ठीक है, लिनक्स को बनाने वाले का था नाम लिनस टॉरवल्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1991 में फर्स्ट रिलीज हुआ था। लिनक्स एक कर्नल के ऊपर बेस्ड है। कर्नल सारे लिनक्स में सेम रहता है, बट उसके ऊपर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कर्नल को बहुत सिंपल ऐसे समझा जा सकता है कि एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का बेस कर्नल है। बहुत अलग एनालॉजी चल रही है, बट एकदम करेक्ट एनालॉजी है। हम अज्यूम कर सकते हैं कि कर्नल एक पिज़्ज़ा का बेस है। अगर किसी को मशरूम पिज़्ज़ा चाहिए, उसके लिए मशरूम डाल के मशरूम पिज़्ज़ा बना दिया। अगर किसी को उसमें कुछ और चाहिए, चीज़ पिज़्ज़ा चाहिए, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ डाल के उसका चीज़ पिज़्ज़ा बना दिया। तो कर्नल सब में सेम रह रहा है, बट उसके ऊपर की चीज़ें चेंज होंगी। अगर फ़ोन का एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर बनाना है तो ब्रेड वही सेम रहेगी, उसके ऊपर जो चीज़ें डालनी है वो अलग हो जाएंगी। उस पर तुम्हें जैसे टच स्क्रीन डालनी है, उसमें तुम्हें माइक्रोफोन इंटीग्रेट करना है, उसमें तुम्हें स्पीकर डालना है, उसमें तुम्हारे बैटरी भी डलेगी, तो ये सारी चीज़ें डलेंगी, वो तुम्हारे ऊपर डलेंगी, पर सबका बेस सेम रहेगा। बेस मतलब जैसे पिज़्ज़ा का बेस होता है वो सब में सेम रहेगा, कर्नल सबका सेम रहेगा। तो हर जगह ये लिखा रहेगा कि कर्नल इज़ अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए लोगों को कोई भी अगर एक लिनक्स कोई समझ ले, कोई एक लिनक्स वो पढ़ ले, तो उसको सारे लिनक्स समझने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी एक करने से उसको सारे क्लियर हो जाते हैं। और ठीक है। लिनक्स फ्रीवेयर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की तरफ से आ रखी है विंडोज़, उसका एक प्रोडक्ट है। और इसका ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस के ऊपर बना होता है। इसके शेल का नाम एम एस डॉस है। शेल अभी हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली शेल क्या चीज़ होती है, कर्नल के ऊपर की लेयर को हम शेल कहते हैं। अभी हमने मतलब इसका इंट्रोडक्शन इसमें ज़रूरी था क्योंकि हम शेल स्क्रिप्टिंग सीखना चाह रहे हैं, हम शेल कमांड सीखना चाह रहे हैं। तो शेल क्या चीज़ है, तो एक कर्नल को जो यूज़ करेगी चीज़ें, जो हम कमांड्स डालें और जो कर्नल तक पहुंचाए और कर्नल से वो काम कराए, उस चीज़ को शेल कहते हैं। तो जो कर्नल पूरा होता है एक शेल के अंदर डला हुआ होता है। शेल मतलब वो सीपी वाला शेल उसको मान सकते हैं, तो वो एक शेल के अंदर पूरे में डला हुआ है। हम जो कमांड्स डालते हैं शेल के ऊपर लिखते हैं, वो कर्नल तक पहुंचाता है, आउटपुट वापस निकालता है और शेल को वापस देता है। तो हम कर्नल के मतलब हम कर्नल से सीधा काम नहीं करवा सकते, उसके लिए हमें शेल चाहिए होता है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। तो लिनक्स में शेल बहुत सारे होते हैं। विंडोज़ में शेल है, उसका नाम एम एस डॉस है। तो अगर मैं कभी भी यहाँ पे विंडोज़ आर करके CMD करूँ, ये जो चीज़ खुल रही है ये एम एस डॉस है, ये डॉस है, ये चीज़ डॉस है। इसमें मैं dir कर सकता हूँ, ls कर सकता हूँ। तो जितनी कमांड मैं इस पर एग्जीक्यूट करूँगा, ls इस पर नहीं चलेगी, ls लिनक्स की कमांड है। वो अभी कमांड्स हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये चीज़ एक शेल है। शेल क्या कर रही है, ये मेरे सिस्टम के इंटरनल पार्ट से मुझे काम करने दे रही है। तो मैं इस पे कमांड लिखूंगा, मैं इस चीज़ पे कमांड लिखूंगा और इसका रिजल्ट मुझे बाहर दिखेगा, बट एग्जीक्यूट वो अंदर हो रही है। तो शेल ये चीज़ होती है। अब लिनक्स में शेल कुछ और होता है और विंडोज़ का शेल एम एस डॉस होता है। बाकी ये लोगो था। लिनक्स फ्री टू यूज़ है, कोई कभी भी डाउनलोड कर सकता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार डाउनलोड कर ही ले, एक बार आज लिनक्स 2 GB या 1 GB का कुछ होगा वो डाउनलोड कर ले। और वो नहीं डाउनलोड करना तो रेस्पबेरी पाई का ओएस डाउनलोड कर लो। रेस्पबेरी पाई का ओएस बहुत कम साइज़ का होगा, 400-500 MB के आसपास का मिल जाएगा, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी सेम काम करेगा। बाकी लिनक्स टॉरवल्ड्स ने बनाया था और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोडक्ट बनाया विंडोज़। लिनक्स में 2 मोड्स होते हैं, CLI GUI। मॉनिटर कनेक्ट करोगे तो CLI नहीं चलेगा, GUI चलेगा। मॉनिटर अगर नहीं कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली CLI मोड चलेगा। विंडोज़ में तुम्हें मॉनिटर कनेक्ट करना ही पड़ेगा, वरना मॉनिटर कंप्यूटर या सिस्टम चलेगा नहीं या ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही मोड है, GUI। बाकी प्रोग्राम्ड ऑन लिनक्स, सी और पाइथन पे बेस्ड है। लिनक्स की बहुत सारी चीज़ें पाइथन पे बेस्ड हैं, और विंडोज़ में C++ और असेंबली पे बेस्ड है। बेसिकली प्रोग्राम्ड ऑन का क्या मतलब हुआ, प्रोग्राम्ड ऑन का मतलब हुआ कि
अगर यहाँ स्टार्ट बटन है और मैं स्टार्ट को क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए? स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे जो चीज़ हो रही है ये इस सिस्टम की प्रोग्रामिंग हो गई कि इफ पर्सन क्लिक्स ऑन स्टार्ट बटन देन डू दिस। तो ये चीज़ विंडोज़ में तो सी प्लस प्लस असेंबली में हो रखी है, बट लिनक्स में ये चीज़ सी और पाइथन में हो रखी है। ओके, ठीक है। ठीक है। तो अब लिनक्स का सोर्स कोड ओपन होता है। जिसको भी लिनक्स का सोर्स कोड देखना है कि लिनक्स ने ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या बना रखा है, सेटिंग्स बटन पे क्लिक करने के क्या बना रखा है, ये चीज़ किसी को देखनी है, फ्री टू यूज़ है, कोई भी जाके देख सकता है, एडिट कर सकता है। विंडोज़ में हर चीज़ छुपी हुई है, उसमें किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि कहाँ क्या कोड है, कैसे कोड है, अनलेस वो कोई माइक्रोसॉफ्ट का ही एम्प्लॉय हो। लिनक्स में 7 लोग एक साथ एक ही कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम पे। मतलब अगर मैं अपनी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, मेरे इस पे 7 लोग एक साथ कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं। इतना भी हो सकता है कि मैं एक स्क्रीन पे एक काम चलाऊँ, उसको दूसरा यूज़र चेंज कर लूँ, दूसरे पे एक नया काम चला दूँ, तीसरे पे एक और काम चला दूँ, चौथे पे एक और काम चला दूँ, और जब भी किसी एक पे वापस आऊँगा तो उस पे वही चल रहा होगा। और 7 यूज़र से मतलब है लिटरली लॉग आउट करके नया यूज़र साइन इन करते हैं उससे, विंडोज़ से मतलब नहीं है इसका। देन सिक्योरिटी, लाइनक्स बहुत सिक्योर है, विंडोज़ कम सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू लिनक्स। और मैक जो है वो और भी ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि वो एक तो लिनक्स पे बेस्ड है और ऊपर से एप्पल जो है वो उसकी केयर करता है। एप्पल के जितने भी डेवलपर्स हैं वो उसकी बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं। तो अगर सपोज 70,000 वायरस तैयार हुए कहीं पे और वो विंडोज़ के अंदर के वायरस बनाए किसी ने, तो मैक्स टू मैक्स विंडोज़ के एम्प्लॉय 70,000 में से 50,000 वायरस को हटा पाएंगे, फिर भी 20,000 वायरस बच जाएंगे। बट अगर लिनक्स में सिर्फ 70 से 100 वायरस हैं टोटल, और एप्पल की कंपनी वाले सारे वायरसेस को हटाने की कोशिश करें, तो वो बहुत आसानी से 70 से 100 जितने भी नए वायरस आएंगे इनको भी हटा देंगे। इनके लिए काम करना बहुत आसान है, बाकी विंडोज़ के लिए काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए विंडोज़ बहुत जल्दी वायरस से इफेक्ट हो जाता है। और अभी जो देखा था कि रैनसमवेयर सारे सिस्टम्स में इंस्टॉल हो गया, सारे बैंक सॉफ्टवेयर उड़ गए और सब बैंक सॉफ्टवेयर लॉक हो गए, तो ये सिर्फ विंडोज़ में होता है। लिनक्स में ऐसा होने के बहुत कम चांसेस हैं। बाकी लिनक्स जो है 32 फाइल सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। 32 एक नंबर है, ना कि 32 बिट या 64 बिट, वो नहीं है। विंडोज सिर्फ 3 को सपोर्ट करता है, FAT16, FAT32, NTFS। NTFS सबसे लेटेस्ट फाइल सिस्टम है जो अभी तक यूज़ हो रहा है। FAT16 बहुत पुराना है, जब विंडोज़ 95 98 आती थी। FAT32 विंडोज़ XP के टाइम का है। और लिनक्स तो X2 X3 NTFS और जितने भी, ये तो सपोर्ट कर ही रहा है जो विंडोज़ करता है, इसके अलावा बहुत सारे करता है। तो एक ऐसी फैक्ट की बात यह है कि अगर लिनक्स में हम किसी पेन ड्राइव को चला रहे हैं और हमने उसको X2 के नाम से सपोर्ट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, तो अगर वो तुम पेन ड्राइव किसी और फ्रेंड को दोगे या किसी और को उसको यूज़ करने को दोगे, उसके सिस्टम पे वो चलेगी ही नहीं पेन ड्राइव। कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो उसके सिस्टम पे चल जाए। तो ये डिफरेंस होता है लिनक्स और विंडोज़ में। तो अगर उसके पास लिनक्स सिस्टम होगा तो उसके पास वो चीज़ चल जाएगी, वरना नहीं चलेगी। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि अगर किसी ने अपने सिस्टम पे लिनक्स और विंडोज़ दोनों इंस्टॉल करे हैं, तो लिनक्स जिस चीज़ में इंस्टॉल्ड होगा वो विंडोज़ को एक्सेसिबल होगा ही नहीं। विंडोज़ में दिखेगा भी नहीं कि कौन सी ड्राइव में लिनक्स इंस्टॉल्ड है। तो जैसे मैं अपनी ड्राइव दिखाऊं, इसमें मेरे सिस्टम के अंदर लिनक्स इंस्टॉल्ड है, बट कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है वो इसमें दिख ही नहीं रहा है। इसमें CDEFGHI जितनी भी हैं, इसमें एक भी लिनक्स की ड्राइव दिख नहीं रही है, विजिबल ही नहीं है। इसलिए क्या? क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि लिनक्स की फॉर्मेट X2 के नाम से वो फॉर्मेट कर रखी है, उस इलाके को, उस ड्राइव को मैंने X2 के से फॉर्मेट किया हुआ है। X2 से फॉर्मेट करने की वजह से विंडोज़ को वो फाइल दिख ही नहीं रही है कि वो ड्राइव है भी। अगर मैं ये दिखाऊं डिस्क मैनेजमेंट, मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ।
डिस्क मैनेजमेंट में दिखाऊं तो यहाँ दिख रहा होगा आराम से कि ये यहाँ पे कुछ चीज़ डली हुई है, ये हमारी डिस्क 0 है, इसमें सी ड्राइव का इतना पार्ट है, बाकी ये 3 चीज़ें लिनक्स ने ले रखी है। ये 75 GB जूम करके दिखाता हूँ, जूम कैसे होता है, मैग्नीफायर। तो यहाँ पे 146 GB मैंने सी ड्राइव को दे रखी है, बाकी की 75 GB लिनक्स के पास है, बट ये हमने जब सिस्टम पे देखा था तो ये कहीं विजिबल भी नहीं था 75। तो डिस्क 0 का फॉर्मेट विंडोज़ रीड भी नहीं कर पा रहा, तो विंडोज़ को पता भी नहीं है किस फॉर्मेट में है। जो चीज़ें NTFS थी वो इसने बता दी कि ये सारी चीज़ें NTFS हैं। बाकी 75 GB क्या है कुछ आइडिया नहीं है। 75 आउट ऑफ 75 GB भरा हुआ है, बट है क्या वो चीज़ विंडोज़ को कोई आइडिया नहीं है। तो ये है डिफरेंस विंडोज़ और लिनक्स के अंदर, इसको फाइल सिस्टम पता ही नहीं है अभी। और लिनक्स के अंदर रूट यूज़र होता है, विंडोज़ में जो एडमिन होता है। इंस्टॉलेशन किसी भी जगह इंस्टॉल लिनक्स हो जाता है, कर्नल सेम रहता है जस्ट लाइक पिज़्ज़ा। तो अगर हमें पिज़्ज़ा किसी छोटे बच्चे को या किसी और को देना है तो हम पिज़्ज़ा का साइज़ छोटा कर देंगे, बट ब्रेड सेम रहेगी। किसी बड़े इंसान को देना है तो सेम चीज़ उसको दे देंगे, बट उसका साइज़ बहुत बड़ा होगा। तो कर्नल सब में सेम रहेगा, ऊपर की लेयर चेंज होती रहेगी। PS4 PS5 ये चीज़ें होती हैं, इनके अंदर वीडियो गेम कंट्रोलर्स इन सब में लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और होता भी है बहुत में। उसमें ऊपर की लेयर चेंज कर देते हैं, वो सोनी वगैरह नाम जो होता है वो इसके ऊपर डाल देते हैं, वो विंडोज़ यूज़ नहीं करते उन चीज़ों में। बाकी ये आता है लिनक्स RPM इंस्टॉल होता है, तो अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है लिनक्स का तो RPM के नाम से इंस्टॉल करेंगे। गूगल क्रोम डॉट RPM, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉट RPM, पावर पॉइंट डॉट RPM। विंडोज़ में कुछ करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉट EXE या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉट MSI, इसमें ये फॉर्मेट करते हैं। RPM रेड हैट पैकेज मैनेजर होता है, MSI माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलेशन इंस्टॉलर पैकेज। बाकी बूट लोडर जिस चीज़ से इंस्टॉलेशन विंडोज़ का होता है वो MBR होता है, लिनक्स के अंदर ग्रब यूज़ होता है। तो इसका कहाँ काम आता है वो भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ पे दोबारा नहीं आएंगे। बूट लोडर का ये मतलब होता है कि अगर सपोज मैंने अपने सिस्टम पे 3 विंडोज़ इंस्टॉल करी हैं, 3 विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ विस्टा, ये 3 चीज़ें इंस्टॉल करी हैं, तो ये तीनों चीज़ें MBR को मिलेंगी। जब भी मैं कंप्यूटर बूट करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि आप बताओ आपको तीनों में से कौन सी चलानी है। मैं जिस पे जाके क्लिक करूँगा ये वो वाली को चलाएगा, और नहीं बना कुछ मतलब कोई एक को चुनूंगा तो वही चलाएगा। तो ये चीज़ MBR का काम होता है। सिमिलरली अगर मैं 4 या 5 लिनक्स अपने सिस्टम में डाल के रखता हूँ, मुझे जो लिनक्स चलाना है उसके हिसाब से वो एक लिस्ट आ जाएगी कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले ही कि बताओ कौन सा आपको रन करना है। फ्लेवर, ये लिनक्स के फ्लेवर होते हैं, इसमें रेस्पियन भी आता है। रेस्पियन डेबियन का बना हो, डेबियन पे बना है, यूबंटू उस पे बना हुआ है, यूबंटू भी है। तो ज़्यादातर यूबंटू यूज़ होता है। यूबंटू अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो 20 चल रहा है। और कुछ, डाउनलोड करूँगा अभी। हाँ तो डाउनलोड कर लियो, रेस्पियन डाउनलोड कर लियो, मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है। वर्चुअल मशीन पे चलाना होगा। तो यूबंटू अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है 20, बट लोग 20 यूज़ करने से डरते हैं थोड़ा अभी, तो वो यूज़ कर रहे हैं इसकी पुरानी वर्जन 18 या 16, क्योंकि 20 अभी बिल्कुल नया आया है, इसको ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर करा नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। तो मे बी इसमें कुछ वायरसेस हैं जो रह गए हों, तो इसलिए लोग पुरानी वर्जन यूज़ करते हैं 16 या 18। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 18 इंस्टॉल करा जा सकता है। बाकी आर्किटेक्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक का कोई डाउट? हम्म, कुछ भी डाउट हो या क्या है, इसके बाद आर्किटेक्चर के बाद फिर हम कोड करना शुरू कर पाएंगे। ठीक है ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा अपलोड करके, और बाकी नोट्स मैं वो भेज दूंगा।
लिंक भेज दियो यार, वो वहाँ से डाउनलोड करूँ। ठीक है, वो मैं लिंक भेज, पर खुद ट्राई कर ले एक बार, जो भी है एक बार देख ले कि कहाँ से डाउनलोड होता है, क्योंकि बहुत